Assalamu alaikum. In previous lecture, we have discussed some of the aspect of analysis, just like how can we interpret the things that are being considered in text or in a discourse, either in the form of written or in the form of spoken. We know very well about we have two type of discourse: spoken discourse and written discourse. In previous lectures, all the previous lectures that are being done by us in the class and that over belong to the discourse analysis. In recent lectures that we have taken, we talked about this rank structure of the discourse, and we learned and that what is a sentence, and what is a clause, what is a phrase, and what is a word. Actually, discourse analysis is the core stream of analyzing any genres of literature. Either we are talking about drama, poetry, prose, novels, and any other aspect that we want to discuss. We have to analyze basically the text. The text is dependent on the things, but we know very well there is a difference between text and discourse. Discourse is something beyond the sentence. If we have a sentence limitation, then we can never ever say that this is a discourse. Discourse is beyond and far away from the sentence. And before moving toward discourse, we already took a look over the sentence, over the clause, over the phrase, and over the word. But in today's lecture, we will learn about something that can make a tree, the tree diagram of a sentence. But again, if we want to make a tree of sentence, we must be aware of or related to word, what is a word, and what is a phrase, and what is a clause, and what is a sentence. And these things were discussed in our previous lecture. But in today's lecture, we are डिफरेंट चीज़ों में इंक्लूड करते हैं. वो कहते हैं कि सबसे पहले हम लेसन अरेंज करते हैं, फिर हम उसे ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर उस ट्रांजैक्शन से हम एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. उस इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में हम मूव करते हैं, और जो मूव हमारी होती है वो हमारे एक्ट में कन्वर्ट होती है. लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के ऊपर, रैंक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के ऊपर. और वो ये समझते हैं, एज वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर, दैट द लेटर्स कंबाइन वर्ड्स एंड वर्ड कंबाइन फ्रेजेस एंड फ्रेजेस कंबाइन clauses and clauses makes sentences, and clauses are the part of the longer sentences. We know very well about that. लेकिन यहाँ पर वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट चीज़ों के ऊपर होती है, डिफरेंट मूव्स के ऊपर होती है, हम उसे ओपनिंग में लेते हैं, स्टार्टअप करते हैं, फिर हम उसके आंसर्स करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन अप करते हैं, फिर हम उसकी फॉलोअप करते हैं. लेकिन पहली कन्वर्सेशन का स्टार्ट करना, उसका रिस्पॉन्स करना, फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना, ये यहाँ पर रैंक स्ट्रक्चर्स के अंदर फॉलो करता है ब्रिमिंगम स्कूल ऑफ थॉट में. लेकिन हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से भी चेंज करना है, इस तरह से भी मोल्ड करना है, दैट कैन हेल्प अस टू असेस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग इंटरप्रेटेड इन द लैंग्वेज और इन द लेक्चर दैट वी हैव. हमें वो बात समझने की कोशिश करनी है जो हमें बताई जा रही है. हमारे पास जो टेक्स्ट हमारे पास नज़र आता है या हमें दिखाया जाता है, या हमारे पास रिटन पीस ऑफ टेक्स्ट है, हमें उसे एनालिसिस करने के लिए हमें ज़रूरी है कि वी मस्ट बी अवेयर related to word, what are the words, what are the phrases, what are the clauses, and what are the sentences. But before moving to that things, we have to be very much specific about the opening of the lines, about the starting of the concept, about the answering of that questions, about the follow-up that we have or that we will have. और रिटर्न में हमारे पास जो है डिस्कोर्स को फर्दर रिटर्न डिस्कोर्स में 4 फर्दर डिवीजन्स में लिया जाता है. स्पोकन का हो या रिटर्न का हो, इन्हें मजीद फर्दर 4 डिवीजन में लिया जाता है, जिन्हें हम अपने
स्किल्स भी कंसिडर करते हैं। 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, जिनमें फर्स्ट वन स्पीकिंग है, सेकंड वन लिसनिंग है, थर्ड वन राइटिंग है एंड फोर्थ वन रीडिंग है। क्या आप नहीं समझते कि यही स्किल आपको अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं, आपको डिस्कोर्स को फॉलोअप करने के लिए मदद देते हैं? बेसिकली डेफिनेटली यही हमारी हेल्प। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि डिस्कोर्स टाइपोलॉजी जो है, टाइपोलॉजी वो स्पोकन में है और रिटन में है। अब स्पोकन क्या होता है कि स्पोकन हम प्लान नहीं कर सकते, हम ब्लंटली और ब्लाइंडली और अनकॉन्शियसली वी कैन से थिंग्स, हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं, वहाँ पर कोई इंटरेक्शंस और इंटरवेंशंस नहीं हो सकते। हम कुछ भी जुबान से अदा कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है। आप कह लें कि हमारे पास कुछ ऐसे डिस्कोर्स की एग्जांपल्स हैं कि हम लेसन्स देते हैं, हम लेक्चर्स डिलीवर कर देते हैं, हम इंटरव्यू दे देते हैं, हम ट्रायल पीरियड से गुजरते हैं, लेकिन ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये स्पोकन की एग्जांपल्स हैं। जब हम इंटरव्यू देते हैं हम प्लान तैयारी करते हैं, जब लेक्चर देते हैं हम प्रिपेयर करते हैं, जब हम लेसन तैयार करते हैं तब भी हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इवन दो कि हम किसी ट्रायल में से गुजरना चाहते हैं तब एट दैट लेवल वी हैव प्लानिंग्स, हम प्लान करते हैं भाई, हम चीज़ों के सोचते हैं, हम ओवर थिंक करते हैं चीज़ों के बारे में। जब ये करते हैं तो ये एग्जाम्पल रिटन डिस्कोर्स की हैं। स्पोकन इट्स नॉन प्लान्ड और इट्स अ लेस प्लान्ड थिंग्स, और रिटन में हमारे पास जो होता है वो प्लान होता है, प्री प्लान स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर की हम बात करना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, रैंक स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ का है, वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम वर्ड क्या चूज़ करेंगे, फ्रेज क्या बनाएंगे, हम उसकी क्लॉज कैसे मेंटेन करेंगे, क्या व्हाट द बेसिक पर्पस ऑफ आवर अरेंजिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट्स, हम क्या करना क्या चाह रहे हैं, क्या हम वो पर्पस हासिल कर लेंगे इन स्टेटमेंट्स को अदा करके? अगर तो कर लेंगे देन वेरी गुड, इट्स मीन यू आर डूइंग योर गुड। लेकिन हमें भी ये महसूस करना है कि क्या आपकी जो टाइपोलॉजी है या टाइपोलॉजी जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आप बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं। देन हमारे पास अमूमन जो होता है हम कन्वर्सेशन को डिस्कोर्स में लेते हैं। ये कन्वर्सेशन एक मेजर टर्म के तौर पर हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं और एक नॉन टेक्निकल सेंस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि फॉर्मल नहीं हो सकती कन्वर्सेशन, क्योंकि इसका रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास, हमारी ज़ुबान में जो आता है कन्वर्सेशन के ज़मरे में कंसिडर किया जाता है। हम कहना क्या चाहते हैं, टॉक में बी क्लास्ड एज कन्वर्सेशन व्हेन इट इज़ नॉट प्राइमरली नेसेसिटेटेड बाय अ प्रैक्टिकल टास्क, any unequal power of participation or participant is partially suspended, the number of participants is small, turns are short, talk is primarily for the participant and not for an outside audience। जो आपके फ्रंटियर होते हैं बस उससे बात करते हैं हम। आपके सामने जो लोग खड़े होते हैं ज़रूरी नहीं कि हर एट अ टाइम पे आपके पास 50 लोग खड़े हों, हो सकता है 1 पर्सन ही हो। इसमें कन्वर्सेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई फॉर्मल रिकॉर्ड भी पाया जाता हो, कोई प्रैक्टिकल टास्क भी आपको परफॉर्म करना हो। आपकी कन्वर्सेशन है, आप जस्ट वर्बली टॉक कर सकते हैं, दैट्स इनफ। और यही डिस्कोर्स हमारे पास आता है कन्वर्सेशन के तौर पर। लेकिन जब हम टर्न टेकिंग की बात करते हैं, बेसिकली ये टर्न टेकिंग हमारे पास है क्या? एक्चुअली हम जब ओवरलैप करते हैं, इट्स मीन जब हम बात के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर्स के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर आंसर्स करते हैं, तो यही होता है कि हमारे पास 4 to 5% हम कन्वर्सेशन का रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन स्ट्रांगली सजेशन क्या होता है, स्पीकर समहाउ नो एग्जैक्टली व्हेन एंड वेयर टू इंटर, और स्पीकर्स जो होता है ही नोज वेरी वेल एट दैट लेवल और व्हेन एंड व्हाई ही वांट्स टू इंटरप्रेट दैट कन्वर्सेशन दैट इज बीइंग प्रोलॉन्ग्ड। जो बात चल रही है उस बात के ऊपर वो बात करना चाहता है, तो उस स्पीकर को पता है उसने कहाँ पे इंटरप्रेट करना है बात को। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर वो बात को अच्छी तरह नहीं समझ रहा होगा, अगर वो बात के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं चाह रहा होगा, तो वो वहाँ पर इंटरप्रेट नहीं करेगा। अगर वो इजीली ग्रैस्प करता है चीज़ों को, अच्छी तरह से आप कह लें कि सिग्निफाई कर लेता है, चीज़ों को अचीव आउट कर लेता है, तो डेफिनेटली वो वैसा करेगा। टर्न टेकिंग से मुराद ये भी है कि आप कहाँ पर ओवरलैप बिटवीन टर्न्स, इट हैज़ सम पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, सिग्नलिंग, एनॉयंस, अर्जेंसी और अ डिज़ायर टू करेक्ट व्हाट इज बीइंग सेड। हम कोई बात किसी ने कही है तो उस बात को ठीक करने के लिए, उसे गलत साबित करने के लिए, उससे अपनी अनोइंग एस्पेक्ट जाहिर करने के लिए मैं एंग्री हूँ उससे। हम किस तरह कह सकते हैं ऐसी बातें? हम तभी कहते हैं जब हम फील करते हैं इट्स अ नीड टू टॉक, ओके ये हमें ज़रूरत दे रहा है, महसूस हो रही है कि हम यहाँ पर बात करें,
और अगर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। जी, हम समझते हैं इसका मतलब अच्छी तरह से कि जब कोई बात कोई कर रहा होता है तो हमें जब ज़रूरत महसूस होती है तो हम उस बात को टर्न आउट कर देते हैं, हम उस बात में ओवरलैप या ब्रेक इन या ब्रेक आउट कर देते हैं, बात में अपनी बात ऐड करना चाह रहे होते हैं। उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि वो आप तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही होती है या तो आप उसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहली शर्त है कि आप अंडरस्टैंड करते ही होंगे तभी आप इस लायक होंगे कि आप उस बात को रिस्पॉन्ड करें। वो रिस्पॉन्ड करने की रीज़न क्या हो सकती है? आप कोई येस नो में आंसर दे सकते हैं, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप कोई डिज़ायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये ठीक भी है कि नहीं है। तो लिहाजा टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास डिस्कशन में ही फॉलो करता है। कन्वर्सली पॉजेज बिटवीन टर्न्स आल्सो कैरी पर्टिकुलर मीनिंग्स। जब हम बात को रोकते हैं तो बात से दूसरे बंदे की टर्न की बढ़ती है तो वहाँ पर एक ख़ास पर्पज़ होता है उस टर्न का लेने का। जब तुम्हारी टर्न, तुम बात कर रहे हो, फिर मेरी टर्न आएगी बारी बात करने की, तो जब मैं अपनी टर्न लूँगा तो डेफिनेटली वहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्पज़ होगा। ड्यू टू दैट स्पेसिफिक पर्पज़ आई वॉन्ट टू इंटरप्रेट, मैं तभी आपकी बात को काटना चाह रहा हूँ। द सिग्निफिकेंस ऑफ द अप्रोच फॉर द लैंग्वेज लर्नर इज कंसिडरेबल। और अगर हम कंसिडरेबल नहीं करते उस अप्रोच को तो फिर हम डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। ये एक मैकेनिज्म है, टर्न टेकिंग एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर स्पीकर जो होता है वो एक अपना नज़रिया रखता है, वो एक अपनी प्लेस रखता है और वो प्रेजेंट करता है उस प्लेस के दरमियान अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को। टर्न टेकिंग मैकेनिज्म जो है ये एक ऐसा तरीका होता है, ये एक ऐसा रास्ता होता है जिसके ऊपर स्पीकर खड़ा होता है और उसी रास्ते से वो गुजरता है और उसी रास्ते से गुजरते हुए वो अपनी कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी ज़ुबान का वो प्रेजेंटेशन देता है। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। फिर कहता है जी एफिशिएंट टर्न टेकिंग भी होती है। जब एफिशिएंट टर्न टेकिंग की होती है तो डेफिनेटली हम यही समझते हैं कि एफिशिएंटली हमें वहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है। इट्स मीन वहाँ पर हमारी आई कॉन्टेक्ट क्या करती हैं, हमारी मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी अच्छी हैं, लिंग्विस्टिक हमारी कितनी अच्छी है, फैक्टर्स हम कौन कौन से इन्वॉल्व करते हैं, तो ये आपकी एफिशिएंटी के अंदर शामिल हो जाएगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, साइन मूवमेंट हमारे क्या कहते हैं, या हमारी इंटोनेशन क्या कहती है, हमारी वॉल्यूम क्या कहती है, हमारी पिच, राइज एंड फॉल क्या कहते हैं। ये एफिशिएंसी है हमारी टर्न टेकिंग की अगर हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जब एफिशिएंटी टर्न टेकिंग की बात करते हैं या एफिशिएंट टर्न टेकिंग की बात करते हैं तो ऐसे डिस्कोर्स को एनालाइज करने के लिए भी हमें एफिशिएंट रहना पड़ता है। और ये फॉर्मल सिचुएशंस जो होती हैं हमारे पास, ये हमें एक अच्छा राइट देती हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अच्छी तरह से खामोश से बैठे होते हैं और वो अपने सर की, अपने उस्ताद की, अपने प्रोफेसर की बात सुन रहे होते हैं। और अगर कि आप देखें कि सेमिनार हो या ना हो, टीचर्स स्टैंडिंग पॉइंट पे हो तो बच्चे अमूमन ही खामोश रहते हैं। तो ये एक एफिशिएंसी लेने की या कॉन्टेक्ट करने की भी एक रीज़न होती है हमारे पास। फिर टर्न की कुछ टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स की टर्न्स होती हैं अब इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और टर्न्स की जो टाइप होती हैं वो आप कह लें कि सबसे पहले एडजेंसी पेयर होता है और इसके अंदर ये तब अकर होता है जब एट्रेंस होती है एक स्पीकर की और वो ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स देता है और ये पॉसिबल होता है कि ये मामला हो जाते हैं। आप कह लें कोई ग्रेटिंग हो सकती है इसके मामले में, फॉर एग्जांपल इज़ लाइक टू बी आंसर्ड बाय एनी अदर ग्रेटिंग्स। आपने कोई ग्रेटिंग की है तो चांसेस हैं कि आपको इसके रिस्पॉन्ड में भी दूसरा बंदा ग्रेट कर दे, लेकिन ये अमूमन चॉइस पे होता है रिस्पॉन्स करना। अगर किसी ने सलाम लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे आप ऑडियंस जो सुन रहे हैं या सामने जो बैठे हैं वो आपको रिस्पॉन्ड कर दें, ये भी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें ये है कि हमें एक्सेप्ट करना और रिफ्यूज़ करना, ये डिपेंडेंसी होती है हमारे लिसनर के ऊपर, और ऐसे केसेस में रिस्पॉन्स को प्रेफरेबल किया जाता है और आप कह लें कि जो डिसप्रेफर्ड रिस्पॉन्स होते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसके अंदर बयान की गया है क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे लेक्चर और होप सो इफ़ यू हैव होता है या इंसर्शन और सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये एक लास्ट स्लाइड्स है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हम नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में करेंगे।
मज़ीद देखेंगे कि डिस्कोर्स एज ए प्रोसेस